Hello and good morning, all my dear students. Welcome in the class of Business Studies. So students, we have started chapter number 9 in our previous class, right? We have already completed chapter number 12, that is consumer protection. And after that, we have started this chapter named as financial management. In this chapter, we have firstly discussed the meaning of financial management. We have discussed that it is a concept which relates with efficient acquisition, utilization, and distribution of finance for smooth flow of company, for smooth working of company. Then we have discussed the role of financial management, and then the most important topic related with the objective of financial management. We have discussed that the main objective of financial management of a company is always to maximize the wealth of equity shareholder. That means to maximize the profit of owner. Equity shareholders are the owners of company, and therefore the main objective is always maximizing the wealth of equity shareholders, because the equity shareholders receives dividend only when all other claimants are satisfied. That's why we just try to maximize their wealth, because when they are receiving maximum dividend, it means all other duties of companies are already fulfilled. Company is capable of making payment to all other groups. Then only it can make payment to equity shareholder, right? So this objective is self-sufficient. This covers all other objectives of company. Now today we have to start with the financial decisions. The first decision is investment decision. This is related with investment of money which is arranged by the organization, investment of finance, or we can say utilization of finance. So the investment decision, which is also known as capital budgeting decision, it is related with the area where we need to invest our money. The selection of assets in which we will be investing our money will be treated as, will be a part of this decision. So have a look what is written over here. This decision relates to careful selection of assets in which funds will be invested by the firm. फर्म या कंपनी कौन से असेट्स में फंड इन्वेस्ट करेगी, उस असेट्स का सिलेक्शन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किया जाता है. फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वही है जो उसको मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करके दे. तो फर्म अलग अलग ऑप्शंस का कंपैरिजन करके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट बेटर ऑप्शन है उसको फाइनलाइज करेगी. आगे देखिए, फर्म दोनों तरीके की एसेट्स एक्वायर करती है, फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स. जब फिक्स एसेट्स के रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है तो इस डिसीजन का दूसरा नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, राइट. व्हेन द डिसीजन रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट इज टेकन, इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नेम कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसी बिहाफ पे रखा गया है कि हम फिक्स एसेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये डिसीजन सबसे क्रूशियल डिसीजन माना जाता है. ये सेंटेंस अंडरलाइन कर लीजिए. कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन टर्न द फॉर्च्यून ऑफ कंपनी, इसलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. ये बहुत खास है क्योंकि ये कंपनी की पूरी किस्मत बदलने की ताकत रखता है. इसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी. क्यों? नंबर 1, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करती है हमारी असेट्स पे, और असेट्स कौन सी आएगी ये डिपेंड करता है हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ कंपनी बिकॉज द फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म असेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी डिपेंड्स अपॉन दीज डिसीजंस ओनली. मैं आज कौन सी और कैसी एसेट्स ला रही हूँ उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी एसेट्स से अल्टीमेटली मुझे रिटर्न देने वाली है, राइट. और कौन सी पॉइंट नंबर 2 इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व. जब भी हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत अमाउंट से फिक्स एसेट्स अरेंज हो जाएगी. नो, you need to invest a large amount of fund while purchasing fixed assets, right. और अगर मैंने गलत पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो सकता है. तो यहाँ पे वही बात है, आप अपने लेवल पे देख लीजिए. जब भी आपको कोई अपनी एसेट खरीदनी है, मोबाइल परचेज करना है या बाइक परचेज करनी है, तो हम बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं क्योंकि बहुत पैसा लगने वाला है. छोटी मोटी चीज नहीं है. पेन लेने से पहले हम इतना नहीं सोचते, लेकिन
लेकिन असेट लेने से पहले सोचते हैं हम, है ना? क्यों सोचना है हमें? क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बट यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन और आपको लॉन्ग टर्म तक सफर करना पड़ सकता है। तो देखिए क्या लिख के दे रहे हैं ये यहाँ पे आपको, investment in long-term project or buying of fixed assets involve huge amount of funds, and if wrong proposal is selected, it may result in wastage of huge amount of funds. That is why capital budgeting decisions are taken after considering various factors and planning. ये कह रहे हैं long term project में पैसा invest करते हैं तो पैसा काफी ज्यादा है, और जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपने गलत डिसीजन ले लिया तो गलत जगह पैसा चला जाएगा। थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। फिक्स असेट्स का डिसीजन बहुत रिस्की डिसीजन भी है, क्योंकि अगर आप बार बार इसको चेंज करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। कंपनी को लॉन्ग टर्म तक सफर करना पड़ेगा। एक बार अगर फिक्स असेट गलत आ गई तो जब तक वो रिटर्न जनरेट करके नहीं देती तब तक हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो रिस्की है, इसलिए भी हमें सोच समझ के लेना चाहिए। नेक्स्ट, इररिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार मोबाइल फाइनल कर लो कौन सा वाला मॉडल लेना है, क्योंकि एक बार ले लिया तो साल 1.5 साल तक नया नहीं ले पाओगे। तो वैसे ही मशीनरी है, असेट्स है, एक बार ले रहे हो, सोच समझ के परचेज करो, क्योंकि अगर एक बार आपने गलत मशीनरी परचेज कर ली तो दोबारा इतना इजीली आप उस मशीन को या उस प्लांट को चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, इस डिसीजन पे स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद ही फाइनलाइज करना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले। अब अभी ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, दीज वर रिलेटेड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्यों ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड थे। अब हम पढ़ रहे हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम ये डिसीजन लेंगे वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल और नॉट। कौन सी असेट्स पे इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है, ये सारा डिसीजन हम जिन असेट्स को ध्यान में, जिन फैक्टर्स को ध्यान में रख के लेंगे, वो फैक्टर्स अब हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, वो सभी फैक्टर्स जिन पे हमारा ये डिसीजन डिपेंड करता है। तो देखिए बढ़ते हैं आगे उन फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर नंबर 1 इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको कितना कैश रिटर्न जनरेट करके देगा। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब है जहां भी आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको कितना रिटर्न जनरेट होगा, वहां से आपको कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो है डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अगर आपका प्रपोजल, आपका प्रोजेक्ट अच्छा कैश जनरेट कर सकता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मुझे अपने रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आपको कितना कैश फ्लो जनरेट करके देता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, whenever a company is investing huge fund in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirement. कुछ रेगुलर रिटर्न आपको मिलेंगे ताकि आप डे टू डे नीड फुलफिल कर सको। The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal. उस प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना कैश वो प्रोजेक्ट आपको जनरेट करके दे सकता है। नंबर 2, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल वो असेट आपको कितना रिटर्न देगी, ये भी बहुत ज्यादा खास है। ओवरऑल रिटर्न ज्यादा होगा तो ही हम किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को फाइनलाइज करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम। For example, if project A is bringing 10% return and project B is bringing 15% return, we should prefer project B. आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्लान है, वो आपको कितनी परसेंट इनकम जनरेट करके देगा। भाई आप 10 लाख रुपीस किसी असेट पे लगा रहे हो, वो 10 लाख रुपीस आपको एनुअली कितने परसेंट की इनकम जनरेट करके दे सकता है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को असेस करेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे वेदर वी वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब हमने क्या देखा, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट देखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हम किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा टारगेट क्या है, प्लस जो प्रोजेक्ट है क्या उसके अकॉर्डिंग लेबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट, मशीनरी ये सब अवेलेबल हो पाएंगे क्या जिस प्लान में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना
मेरे लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशंस हम करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे वेदर वी नीड टू अडॉप्ट द प्रपोजल और नॉट। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, along with the return, risk, cash flow, there are various other criteria which help in selecting an investment proposal. और भी बहुत सारी चीजें होती है। नंबर 1, availability of labor, then technology, input, machinery, etc. The decision to invest in a particular project involve number of calculations regarding the amount of investment, interest rate, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सारी चीजों पे आपको कैलकुलेशंस बिठानी है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, एनालाइज करनी है और फिर उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये, there are different techniques to evaluate the investment proposal which are known as capital budgeting technique. आपको ध्यान में होगा, नहीं है तो मैं बता देती हूँ, हायर लेवल पे जब आप जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा बजटिंग नाम से, यानी उस सब्जेक्ट में आपको यही सिखाया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो आपको कितना रिटर्न देता है और कितना नहीं देता है। ठीक है, इन टेक्निक्स से आप समझ पाओगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रपोजल है, उसको फाइनलाइज करने से पहले हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को और फिर डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रपोजल। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर ऑल द अल्टरनेटिव available alternatives very carefully and then only decide where to invest the most scarce resources of the firm, that is finance. यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है पर पैसा लिमिटेड है, तो हम सभी ऑप्शंस को अच्छे से इवैल्यूएट करके फिर डिसाइड करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट आवर फंड। ये हमने फर्स्ट डिसीजन कंप्लीट कर लिया, ये आसान सा डिसीजन था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट डिसीजन से समझते जाना, सारे पॉइंट्स बहुत खास है, बहुत अच्छे से लॉजिकली सब कुछ चल रहा है, कहीं भी किसी भी पॉइंट में आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, एक एक पॉइंट के पीछे एक परफेक्ट रीजन है, एक परफेक्ट लॉजिक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 9.3.2 फाइनेंसिंग डिसीजन से। देखिए ये डिसीजन रिलेटेड है अबाउट सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको पता होना चाहिए कि हम दो सोर्सेस से पैसा अरेंज कर सकते हैं। कौन कौन से दो सोर्सेस है, ध्यान से देखिए। सोर्स नंबर 1 है ओनर्स फंड और सोर्स नंबर 2 है बोरोड फंड। जब भी मुझे पैसा अरेंज करना है मेरे पास दो ऑप्शंस है, ओनर्स फंड से पैसा अरेंज कर सकती हूँ, बोरोड फंड से पैसा अरेंज कर सकती हूँ। ओनर्स फंड में दो ही चीजें आती है, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। ओनर्स फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, ये सारी चीजें। ये आपने पढ़ा था क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 में। अब देखो, अगर मैं ओनर्स फंड से पैसा अरेंज करती हूँ, अगर मैं शेयर्स इशू कर देती हूँ मार्केट में, तो मेरे ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं, मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं शेयर होल्डर को रिटर्न दूंगी, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं शेयर होल्डर को रिटर्न देने के लिए बाउंड नहीं हूँ। बट अगर मैंने बोरोड फंड से पैसा अरेंज किया तो मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे तो इन्वेस्टर को उसका रिटर्न देना ही पड़ेगा। मैंने अगर बैंक से लोन लिया है तो मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरी असेट रिस्क पे आ जाएगी। जो असेट मैंने इन्वेस्ट किए हैं उन असेट्स को, जो मॉर्गेज रखी है, उन असेट्स को सेल करके बैंक अपने लोन की अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओनर्स फंड के भी अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, बोरोड फंड के भी अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। तो हम कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, ओनर्स फंड से पैसा अरेंज करें। मेरा पहला सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इससे पहले वाला, हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कौन से फंड से पैसा अरेंज करें, ये हमें बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसीजन लेने में कि आपको कौन से सोर्स से फाइनेंस अरेंज करना चाहिए, ओनर्स फंड से कि बोरोड फंड से। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो ये बता रहे हैं कि ओनर्स फंड बोरोड फंड में होता क्या क्या है। तो देखिए, the second important decision which the finance manager has to take is deciding the source of finance. अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, the company can raise finance from various sources such as by issue of share, debenture, taking loan or anything. Deciding how much to raise from which source is the concern of financing decision. आपको पूछ सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड है, तो आप ये सेंटेंस अंडरलाइन कर लीजिए, डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स, कौन से सोर्स से कितना पैसा अरेंज करेंगे, ये जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो ये क्या है,
फाइनेंसिंग डिसीजन का कंसर्न है। ठीक है, अब बेसिकली सोर्सेस कितने होते हैं? सोर्सेस होते हैं दो। कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, दो मेन सोर्स है मनी अरेंज करने के। अब ओनर्स फंड में क्या क्या आता है? तो देखिए, ओनर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, और बोरोड फंड में आते हैं डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, ये सारी चीजें। बैंक से लोन ले लो, बॉन्ड इशू कर दो, डिबेंचर इशू कर दो, ये सब बोरोड फंड का पार्ट है। अब आगे देखिए, फाइनेंस मैनेजर को क्या डिसाइड करना है? फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कितना पैसा ओनर्स फंड से ले और कितना बोरोड फंड। देखिए ये रहा, जितना मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, ये इतना आपके लिए लिखना कंपल्सरी है। द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड how much to raise from owners fund and how much to raise from borrowed fund। कितना पैसा ओनर्स फंड से अरेंज करें और कितना पैसा बोरोड फंड से अरेंज करें, ये हमारा मेन कंसर्न है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड के प्रॉस और कॉन्स। तो देखिए, while taking this decision, the finance manager compares the advantages and disadvantages of different sources। अब यहाँ पे आपको ओनर्स फंड और बोरोड फंड की परफेक्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखी हुई है। The borrowed fund have to be paid back and involve some degree of risk। ये बोरोड फंड की डिसएडवांटेज है कि आपको उसको फिक्स टाइम के बाद पे बैक करना होगा और उसमें कुछ रिस्क होगी। Whereas owners fund there is no risk। अगर आप ओनर्स फंड लेते हो तो कोई रिस्क नहीं है। There is no fixed commitment of repayment and there is no risk involved। कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको डिविडेंड दो, रिटर्न दो। आपको प्रॉफिट हो रहा है देन ओनली यू विल गिव रिटर्न, अदरवाइज नहीं। नाउ अब दोनों के कुछ प्रॉस और कॉन्स हैं, तो फाइनेंस मैनेजर दोनों का एक मिक्स फाइनलाइज करता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बट द फाइनेंस मैनेजर प्रेफर्स अ मिक्स ऑफ बोथ टाइप्स अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन। Finance manager fixes the ratio of owners fund and borrowed fund in the capital structure of company। वो एक रेशियो डिसाइड करता है कि कितना ओनर्स फंड इशू करना है और कितना बोरोड फंड इशू करना है। अब देखिए कुछ फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि कहां से और किस सोर्स से पैसा लें। नंबर वन, फैक्टर नंबर वन बहुत आसान, कॉस्ट। अलग अलग सोर्स से पैसा रेज करने की अलग अलग कॉस्ट है। फाइनेंस मैनेजर उस कॉस्ट को कंपेयर करेगा और उस सोर्स को फाइनलाइज कर लेगा जहां मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, ही प्रेफर्स द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। कौन सा सोर्स फाइनलाइज कर लेंगे? जहां सबसे कम कॉस्ट में काम हो रहा है। तो ये लैंग्वेज अगर हम पढ़ें, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। अलग अलग सोर्सेस को कंपेयर किया, जहां मिनिमम कॉस्ट में काम हो रहा है उसी सोर्स को फाइनलाइज कर लिया। सेकेंड, रिस्क। दोनों में रिस्क है, पर ज्यादा किसमें है? बोरोड फंड में। तो क्या लिखना है? मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। बोरोड फंड में आपको रिटर्न देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, रिटर्न देना पड़ेगा, तो ज्यादा रिस्की है ओनर्स फंड के कंपैरेटिवली। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम सिर्फ बोरोड फंड ले लें? नो। फाइनेंस मैनेजर कंपैरिजन करेगा और मॉडरेट रिस्क फैक्टर वाली सिक्योरिटीज इशू कर देगा, ऐसी सिक्योरिटीज जिसमें मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न हो। तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आसान से थे। कॉस्ट कंपेयर करेंगे, वो ऑप्शन फाइनलाइज करेंगे जहां कम कॉस्ट आ रही हो। रिस्क कंपेयर करेंगे, वो ऑप्शन फाइनलाइज करेंगे जहां रिस्क हमें थोड़ी कम फेस करनी पड़े। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए कैश फ्लो पोजीशन। इस बार हम देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैश कितना रहता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। यानी क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास हर वक्त कैश अवेलेबल रहता है? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ कैश इनफ्लो है? कहीं पैसे की शॉर्टेज तो नहीं रहती? अगर शॉर्टेज नहीं रहती तो यू कैन इजीली अफोर्ड बोरोड फंड। आप आराम से बोरोड फंड अफोर्ड कर सकते हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये केस स्टडी में एग्जैक्ट लाइंस आएंगी बेटा, ध्यान रखिएगा। With smooth and steady cash flow, company can easily afford borrowed fund। अगर कैश फ्लो प्रॉपर है, स्मूथ कैश फ्लो है, आपको कैश की शॉर्टेज नहीं होती, तो यू कैन गो विद बोरोड फंड। क्यों? क्योंकि बोरोड फंड पे फिक्स रिटर्न देना पड़ता है और अगर आपके पास कैश है तो आप रिटर्न दे सकते हो।
लेकिन अगर आपको पैसे की शॉर्टेज रहती है, when companies have shortage of cash flow, then they must go for owners fund. अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, आपकी कंपनी में पैसा कभी होता है और कभी नहीं होता, तो आपको ओनर्स फंड ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर ओनर्स फंड लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी साल आपके पास पैसा नहीं है तो भी चलेगा, रिटर्न देना जरूरी नहीं है। बट अगर बोरोड फंड ले लिया तो रिटर्न देना कंपल्सरी रहेगा। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट में क्या बताना है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैश की शॉर्टेज नहीं रहती, कैश फ्लो बहुत प्रॉपर है, स्मूथ एंड रेगुलर है, तो आप बोरोड फंड अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आप उस पर रिटर्न पे कर पाओगे। बट अगर आपकी कंपनी में कैश की शॉर्टेज रहती है तो आपको ओनर्स फंड ले लेना चाहिए क्योंकि उस पर रिटर्न पे करना कंपल्सरी नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कंट्रोल कंसिडरेशन। खास है पॉइंट, आगे एक दो बार और रिपीट होने वाला है। अब आपकी कंपनी को कंट्रोल करते हैं आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर आपने नए शेयर्स इशू कर दिए, अगर आपने और ओनर्स फंड सिक्योरिटी इशू कर दी, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल डिवाइड हो जाएगा, बंट जाएगा। सपोज आप मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो अभी फिलहाल मेरी कंपनी को आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर मैंने नए इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो अब आपके साथ मिलके वो नया शेयर होल्डर भी कंपनी को कंट्रोल करेगा, राइट? तो ऐसे में काफी बार हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाओ। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कंट्रोलिंग पावर आपसे छीनी ना जाए, तो कंपनी नया ओनर्स फंड नहीं अरेंज करेगी, पैसा अरेंज करेगी बोरोड फंड से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल कंसिडरेशन ये कहता है दैट इफ योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डू नॉट वांट टू शेयर द कंट्रोल, they want to retain the complete control of business, then company will prefer borrowed fund. On the other hand, if they do not mind to lose the control, then company may go for owners fund. इजी लैंग्वेज में एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए पॉइंट। ये पॉइंट आपको बता रहा है, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ योर कंपनी आर रेडी टू शेयर द कंट्रोल विद न्यू शेयर होल्डर्स, देन कंपनी कैन अरेंज मनी फ्रॉम ओनर्स फंड, अदरवाइज द कंपनी हैज टू रिलाई ऑन बोरोड फंड। क्योंकि अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे तो आपकी कंपनी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी इशू करने की जो कॉस्ट होती है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि पहले तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इशू ऑफ सिक्योरिटी such as brokers commission, underwriters fees, expenses on prospectus etc. अब फर्म फाइनेंस अरेंज करने से पहले इस फ्लोटेशन कॉस्ट को कंपेयर करेगी और फिर जहां मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट होगी वो डिसीजन ले लेगी। देखिए, which involve firm prefer the securities which involve least flotation cost. हम हमेशा एज अ बिजनेसमैन अपना खर्चा मिनिमाइज करना चाहेंगे, तो फर्म वो सिक्योरिटी फाइनलाइज करेगी जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट कम है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस के रूटीन खर्चे, खास पॉइंट है। अगेन लॉजिकल है, लॉजिक समझ में आ गया तो सब हो जाएगा। ये कह रहा है कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करेंगे। अगर फिक्स खर्चे बहुत ज्यादा है, रूटीन में बिजनेस ऑपरेट करने के फिक्स एक्सपेंसेस ऑलरेडी हाई है, तो अब आपको ओनर्स फंड ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोरोड फंड लोगे तो एक और खर्चा ऐड हो जाएगा, हर साल उनको रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम हो रही हो चाहे नहीं हो रही। तो अगर रूटीन के एक्सपेंसेस ज्यादा है तो ओनर्स फंड ले लो, क्योंकि बोरोड फंड लोगे तो उनको कहाँ से पैसा चुका पाओगे, आपके तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस ज्यादा है। और अगर आपको कोई ट्रबल नहीं है, आपकी फिक्स एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है, तो फिर आप बोरोड फंड ले सकते हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रेफर ओनर्स फंड, because due to high fixed operational costs, the company may not be able to pay interest on debt securities, which can cause serious troubles for the company. अगर कंपनी में ऑलरेडी फिक्स एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है तो कंपनी को बोरोड फंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोरोड फंड ले लेता है तो उसके फिक्स एक्सपेंसेस और इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर कंपनी इन फिक्स एक्सपेंसेस को चुकाने के केपेबल नहीं हुई तो कंपनी के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ये आपका पॉइंट नंबर 6 बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पार्ट,
कैपिटल मार्केट कंडीशन या स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब अभी कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है, अगर मार्केट में मंदी चल रही है, डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो लोग वैसे भी आपकी ओनर्स फंड सिक्योरिटीज नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन पीरियड यानी प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं यानी यू वॉन्ट बी एबल टू गिव रिटर्न टू योर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को रिटर्न ही नहीं दे पाओगे तो कौन आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो ऐसे में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। किसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बोरोड फंड सिक्योरिटी में। तो हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे तो डेफिनेटली फर्म भी बोरोड फंड को क्यों ही बोरोड फंड से पैसा रेज करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, सॉरी मैंने ओनर्स फंड बोलना था यहाँ पे, थोड़ा सा ये पॉइंट एक बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि अगर मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है तो हम ओनर्स फंड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बोरोड फंड गलती से बोल दिया, ओनर्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी हमें रिटर्न नहीं दे पाएगी, राइट। अगर कंपनी हमें रिटर्न ही नहीं दे रही तो हम बोरोड फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो डिप्रेशन पीरियड में फिर कंपनी भी कौन सी सिक्योरिटी इशू करेगी, बोरोड फंड सिक्योरिटीज इशू करेगी, क्योंकि लोग ओनर्स फंड में तो पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट में बहुत अच्छे से प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट अभी बूम का है, बूम यानी हर कंपनी ग्रो कर रही है, हर कंपनी बढ़िया रिटर्न दे रही है, तो ऐसे में इक्विटी शेयर बहुत आराम से सेल होंगे। अगर हर कंपनी बढ़िया रिटर्न दे रही है तो हर इंसान कंपनी की इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, The conditions of capital market also help in deciding the type of securities to be raised. During boom period, it is easy to sell equity share. क्यों? क्योंकि लोग ready हैं risk लेने के लिए. But during depression, more demand for debt securities in capital market. There is more demand of debenture. Depression में, क्योंकि debenture में fixed return मिलता है. तो ऐसे में डिप्रेशन पीरियड है तो आपको बोरोड फंड पे डिपेंड होना पड़ेगा, बूम पीरियड है तो ओनर्स फंड पे। अब एक बार कंक्लूसिवली ये सारे फैक्टर्स आपको री एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। हमने पढ़े ये 7 फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे आपके फाइनेंसिंग डिसीजन में कितना डिबेंचर होगा आपकी कंपनी में और कितना इक्विटी होगा, या फिर मैं कहूँ कि कितना पैसा बोरोड फंड से अरेंज करेंगे और कितना ओनर्स फंड से। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट। आपको सिंपल सी बात लिखनी है कि अलग अलग सिक्योरिटीज से पैसा अरेंज करने की अलग अलग कॉस्ट आती है। फर्म उस सोर्स को फाइनलाइज करेगी जहां मिनिमम कॉस्ट है। नंबर 2 इज रिस्क। अलग अलग बिजनेस के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अलग अलग रिस्क है, हम उस सोर्स को फाइनलाइज करेंगे जहां मॉडरेट रिस्क या मिनिमम रिस्क है। नंबर 3 कैश फ्लो पोजीशन। ये हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कैश की शॉर्टेज नहीं है तो हम बोरोड फंड ले सकते हैं, बट अगर हमें कैश की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है तो हम ओनर्स फंड लेंगे। कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रोल शेयर करना चाहते हैं तो ओनर्स फंड, और अगर उनको प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते कि उनको उनका कंट्रोल किसी और के साथ शेयर करना पड़े, तो बोरोड फंड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट, जहां मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट वो सोर्स फाइनलाइज करेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर ऑलरेडी हाई है तो बोरोड ओनर्स फंड, क्योंकि बोरोड फंड आपके फिक्स एक्सपेंसेस में एडिशन ले आएगा। तो अगर फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी हाई है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि आप ओनर्स फंड ले लीजिए, अदरवाइज बोरोड फंड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है। अगर मार्केट में बूम है तो डेफिनेटली आप ओनर्स फंड पे डिपेंड हो सकते हैं, लोग इक्विटी शेयर खरीद लेंगे। और अगर मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है तो बोरोड फंड पे डिपेंड होना पड़ेगा, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन ओनर्स फंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड। ये हमने कवर कर लिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। टुमारो वी हैव टू डिस्कस द न्यू पार्ट, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। हम देखेंगे कि फर्म ये डिसाइड करती है कितना पैसा डिविडेंड देना है, कितना रिटेन करके रखना है। बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से पूरा फैक्टर्स के साथ डिस्कशन करेंगे हम इस पे कल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।